بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 8th کلاس کی اردو کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کے 7 جو چیپٹر ہے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جن کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 8 جس کا نام ہے مناظر پاکستان، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ اس سبق کے جو الفاظ مانی ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد خلاصہ اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز شیئر کی جائے گی۔ تو آپ نے ویڈیو بالکل بھی سکپ نہیں کرنی، امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ لاسٹ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، جو آپ کے پیپر کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے۔ اور اگر آپ پیپر کی پریپریشن میں ان کوشچنس کو جو لاسٹ میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایڈ کریں گے پیپر کی پریپریشن میں، تو آپ کے جو چانسز ہیں زیادہ مارکس لینے کے، آپ کے پیپرز میں زیادہ مارکس ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو بالکل بھی سکپ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی الفاظ مانی۔ سب سے پہلا الفاظ ہے بے پناہ، جس کا مطلب ہے بے انتہا، بہت زیادہ۔ محیط کا مطلب ہے پھیلا ہوا۔ حسن و جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ فراہم کا مطلب ہے مہیا، اکٹھا، حاصل، جمع شدہ۔ چپا چپا کا مطلب ہے کونا کونا، مراد ہر حصہ۔ گھنے کا مطلب ہے بہت گہرے، نہایت سیاہ۔ سیاحت کا مطلب ہے لمبا سفر، گھومنا پھرنا۔ سحر کہتے ہیں جادو کو۔ بالحسوس کا مطلب ہے خاص طور سے، اور محفوظ کا مطلب ہے لطف اندوز، بہرہمند ہونا۔ سالہ سال سے مطلب ہے مدت، کئی سال۔ مقام کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ، جائے قیام۔ مقبول کا مطلب ہے مشہور۔ نجی کا مطلب ہے ذاتی، شخصی یا غیر سرکاری، پرائیویٹ۔ منجمد کا مطلب ہے سردی سے جمع ہوا، یک بستہ۔ مشغول کا مطلب ہے مصروف۔ حیرہ کن کا مطلب ہے چکا چوند پیدا کرنے والا، حیرت میں ڈال دینے والا۔ بے نظیر کا مطلب ہے بے مثال۔ سرسبز کہتے ہیں ہرا بھرا، تر و تازہ کو۔ خاصہ کا مطلب ہے کوئی خاصیت یا کوئی خصوصیت۔ مواقف کا مطلب ہے یکساں، برابر۔ گرد آلود کہتے ہیں خاک میں ملا ہوا، غبار آلود۔ نایاب کا مطلب ہے نادر، ناپید، بیش قیمت۔ دے دینی کا مطلب ہے قابل دید، دیکھے جانے کے قابل۔ دلکش کا مطلب ہے دل لبھانے والا، دل پسند۔ بقا کا مطلب ہے زندگی، وجود، پائیداری، باقی رہنا۔ مسحور کن کا مطلب ہے جادو کرنے والا، زبردست، اثر ڈالنے والا۔ بیک وقت کہتے ہیں ایک وقت میں، ایک ساتھ۔ سنگم کا مطلب ہے ملن، ملاپ، اتصال۔ منفرد کا مطلب ہے بے مثال، اکیلا۔ الفاظ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی خلاصہ، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ خلاصہ ہے، یوں تو پورے پاکستان کو ہی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال اور اعزازات سے نوازا ہے، اور بلا شبہ اس کا ہر حصہ اس قابل ہے کہ اس کی سیاحت کی جائے، لیکن موسم گرما میں لوگوں کی بڑی تعداد بالخصوص وطن عزیز کے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتی ہے، جہاں مئی سے ستمبر تک کا موسم سیاحتی سرگرمیوں کے لیے موزوں ترین سمجھا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں مری، گلیات، ہنزہ، کلام، سوات اور معلم جبہ وغیرہ تو سالہ سال سے پاکستان کے مقبول اور پسندیدہ سیاحتی مقامات میں شامل ہے۔ بلوچستان میں ہنگول نیشنل پارک ایک سرسبز وادی ہے جو موسم گرما میں سیاحوں کا ایک بڑا مرکز بن سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے جو تقریباً 6,19,000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کراچی سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان کے 3 اضلاع گوادلس، بیلر اور رادان پر محیط ہے۔ وسیع رقبے پر پھیلے اس علاقے کو 1988 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں واقع کمراٹ ویلی بھی بہت تیزی سے دنیا بھر کے سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ بادلوں سے گرے برف پوش پہاڑوں کے درمیان واقع اس وادی میں کئی سرسبز چراگاہیں موجود ہیں، جنہیں مقامی زبان میں بانڈے کہتے ہیں۔ یہاں موجود بلند و بالا پہاڑ اور بہتے پانی کا شور سیاحوں کو اپنے سحر میں جگڑ لیتا ہے۔ یوں تو پاکستان بھر میں ٹراؤٹ کے شکار پر پابندی ہے، لیکن یہاں ان مچھلیوں کی فارمنگ ہوتی ہے، چنانچہ آپ تالاب اور دریا میں سے کسی بھی جگہ کی ٹراؤٹ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں۔ وادی کمراٹ کا پہلا مقام راؤشی ڈب ہے۔ راؤشی ڈب سے ذرا آگے کمراٹ آبشار ہے۔ یہاں سے کچھ آگے ایک پیالہ نما میدان ہے جسے بوٹ ڈب کہا جاتا ہے، یہاں پہ بھی کاشتکاری ہوتی ہے۔ بوٹ ڈب سے تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد کالا چشمہ کا مقام آتا ہے۔ گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نتلر اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین آلو بھی کاشت ہوتا ہے۔ چیڑ کے جنگلات سے گھری یہ وادی دنیا کے ہنگاموں سے دور ایک الگ تھلگ اور پرسکون سیاحتی مقام ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت ظفر آباد کے شمال کی جانب چہلا بانڈی پل سے شروع ہو کر تاؤ بٹ سے تقریباً 240 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے۔ وادی نیلم کا شمار آزاد جموں کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے۔
पंजाब का शहर बावलपुर तारीखी मकामात, यादगारों और बागात के खजाने का मालिक है। ये शहर दरिया सतलज के बाएं जानब पर शावर कराची रेलवे लाइन के साथ वाक़ है। अब्बासी मस्जिद, सेंट्रल लाइब्रेरी, किला दारोड, नूर महल, दरबार महल, मकबरा बीबी जीवंदी और लाल सहानरा नेशनल पार्क यहाँ के अहम और दिलकश तारीखी मकामात में सर फहरिस्त है। ये था खुलासा। अब आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करती हूँ, तो आपने जो क्वेश्चन मैं लगाती जा रही हूँ आपने सेम एज इट ही लगा लेने हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी। पहला क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में कौन सा पार्क मशहूर है? तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर लें, हंगोल नेशनल पार्क। आप ये भी लाइन लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, या ये भी लाइन आप ऐड कर सकते हैं, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हंगोल नेशनल पार्क कितने एकड़ रकबे पर फैला हुआ है? तो इसका आंसर है, ये तकरीबन 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हंगोल नेशनल पार्क में स्याहों की आमद का आगाज़ कब हुआ? तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करें। जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है वो आपने इसके आंसर में ऐड करनी है। आपने लिखना है, स्याहों की आमद का आगाज़ 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तकमील के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पिंक्स ऑफ बलूचिस्तान को मकामी अफराद क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करें। इसके आंसर में आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है, स्पिंक्स ऑफ बलूचिस्तान जिसे मुकामी अफराद अब्बुल अव्वल का मुजस्समा भी कहते हैं। ये वाली लाइन आपने इसके आंसर में ऐड करनी है और आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमराट वैली कहाँ वाक़या है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तीर में कमराट वैली वाक़या है। इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दरिया पंजगोड़ा की दूसरी जानब कौन सा गांव वाक़या है? तो इसका आंसर है, काला चश्मा से आगे दरिया पंजगोड़ा की दूसरी जानब बिचारतन नामी एक छोटा सा गाँव है। इसका आंसर आपने यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मसाकिन से क्या मुराद है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मसाकिन से मुराद मस्कन की जमा है, जिसका मानी है रहने की जगह, मुकाम, ठिकाना वगैरह, जानवरों की जाए पैदाइश या जानवरों की रहने की जगह। सवाल नंबर 2 है, मदरजा झैल सवालात के तफसीली जवाब दे। सवाल नंबर 1 है, हंगोल नेशनल पार्क की चंद खुसूसियात बताएं। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। आंसर से पहले आप हेडिंग दे लेंगे हंगोल नेशनल पार्क, फिर उसके बाद आप यहाँ से नोट करेंगे, बलूचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क एक सरसब्ज वादी है जो मौसम गर्मा में सयाहों का एक बड़ा मरकज़ बन सकता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो तकरीबन 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। ये कराची से 190 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान के 3 अजला गवादर, लसबेला और आवारान पर मुहित है। वसी रकबे पर फैले इस इलाके को 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद ये 2 लाइनें छोड़ के आपने लास्ट से स्टार्ट करना है। इस पार्क का नाम इसके जनूबी हिस्से में बहने वाले दरिया हंगोल के नाम पर रखा गया है, जो कि बहरा अरब के साहिल के साथ बहता है और आबी परिंदों और समुद्री हयात की बड़ी तादाद को अपने एक पे महफूज पनाहगाह फराहम करता है। दरिया हंगोल के साथ वसी खाड़ी यानी नमकीन पानी वाला दलदली इलाका है। ये दरिया आगे जाकर समंदर में गिरने से पहले मदो जज़र वाला एक दहाना बनाता है जो दीगर इलाकों से हिजरत करके आने वाले हज़ारों परिंदों और दलदली मगरमच्छों का मस्कन है। यहाँ तक लिखने के बाद आपने नीचे से भी ये लाइन ऐड करनी है। हंगोल नेशनल पार्क पर जाने वालों को एक ही मुकाम पर कई तरह के मकामात के नज़ारे का अनोखा तजर्बा हासिल होता है, क्योंकि यहाँ बैक वक्त सहराई और मैदानी इलाके भी मौजूद हैं, घने जंगलात भी हैं और बंजर पहाड़ी सिलसिला भी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऐड करेंगे, हंगोल नेशनल पार्क में मुल्क भर से सयाहों की आमद का बाकायदा आगाज़ 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तकमील के बाद हुआ, जो कि इस खित्ते को कराची और मुल्क के दीगर मकामात से मिलाने वाली अहम शाहराह है। यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादी गुमराट के कुदरती हुस्न पर चंद जुमले लिखे। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लें। आपने बड़ी सी हेडिंग लिखनी है कुमराट वैली, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में वाक़ कुमराट वैली की बहुत तेज़ी से दुनिया भर के सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही है। बादलों से घिरे बर्फ़ पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़ इस वादी में कई सरसब्ज़ चरागाहें मौजूद हैं जिन्हें मुकामी ज़बान में बांडे कहते हैं। वादी में जहाँ से भी गुजर हो वहाँ पत्थरों से टकराता दरियाए पंजगोड़ा का पानी आपको अपनी मुतरन्नम आवाज़ से महफूज करता रहेगा और वादी में मौजूद देवदार के जंगलात से उठने वाली खुशबू तो शायद आप उम्र भर ना भुला पाएं। यहाँ मौजूद बुलंदोबाला पहाड़ और बहते पानी का शोर सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। जूं ही आप वादी कुमराट में दाखिल होंगे, एक जानब पहाड़ों के दामन में आपको दरियाए पंजगोड़ा की शाह दरिया कमरोड बहती दिखाई देगी, तो दूसरी जानब छोटे छोटे गाँव और कुदरती नज़ारों से माला माल मुख्तलिफ मकामात मिलेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, सियाहती सरगर्मियों के लिए मौजूद तरीन मौसम है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मई से सितंबर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दरिया हंगोल के साथ वाक़या है, वसी खाड़ी खाड़ी यानी नमकीन पानी वाला, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 दलदली इलाका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हंगोल को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था, तो इसका आंसर आपने लगाना है ऑप्शन नंबर 1 1988 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वादी कुमराड में आप दरिया और तालाब में से किसी वक्त भी खा सकते हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 ट्राउट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वादी कुमराड में एक छोटा सा गांव है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 बुजारतन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बुजारतन से आगे वाक़या 3 वादियों का संगम है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 दोजांगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वादी कुमराड का सबसे पहला मुकाम है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 राशिदा। लास्ट एमसीक्यूज है, कुमराड आबशार तक पहुंचने के लिए जीप से उतरकर पैदल चलना पड़ता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज है जुमलों को पढ़िए और इसमें हासिल मुसद्दर अलग कीजिए। सबसे पहले जुमला है, छोटू से शफकत का बर्ताव करना चाहिए। जो मैं मुसद्दर होगा उसको अंडरलाइन कर दूंगी ताकि आपको सही से क्लियर पता चल जाए। तो इस जुमले में मुसद्दर होगा बर्ताव। उसके बाद नेक्स्ट जुमला है, दरवाज़ा बंद करने से मुझे घबराहट होती है, तो इसमें आपने लगाना है इसमें हासिल मुसद्दर घबराहट। उसके बाद नेक्स्ट जुमला है जी, ठंडा पानी पीने से खांसी हो सकती है, तो इसमें मुसद्दर होगा खांसी। ये अंडरलाइन में करती जाऊंगी, आपने इनको सामने वाली लाइन पे लिखते जाना है। सेकंड लास्ट है, हर माह थोड़ी बचत ज़रूर करना चाहिए, तो इसमें आप बचत को अंडरलाइन करेंगे। और लास्ट वाला है, बच्चे की मुस्कुराहट से माँ का दिल पुरसुकून हो गया, तो यहाँ पे हासिल मुसद्दर होगा जी मुस्कुराहट। इसको आपने सामने लिख लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दरख्त लगाना कैसा अमल है, चंद जुमले तहरीर करें, तो इसका आंसर आप नोट कर लें। दरख्त लगाना सदका जारिया, इस्लाम में दरख्त लगाने की ताकीद की गई है। दरख्त माहौल का अहम तरीन हिस्सा है। इन्हें ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि ये हवा की सफाई का काम करते हैं। ये हवा में मौजूद अज़ाफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों की ज़िंदगी किसी न किसी तरह पौधों से जुड़ी होती है। हम दरख्तों से ऑक्सीजन के अलावा लकड़ी भी हासिल करते हैं। दरख्त हमें फल फूल और खाने की दूसरी चीज़ें मुहैया करते हैं। उनके मुख्तलिफ हिस्सों से दवाएँ भी बनाई जाती है। दरख्त परिंदों के लिए कुदरती मस्कन भी होते हैं। दरख्त ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। ये आंधियों की रफ्तार कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। मुल्क की खुशहाली और आलूदगी से बचाव के लिए दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है और हमें चाहिए कि हम अपने हिस्से के दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत भी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन नंबर 8 मनाज़िर पाकिस्तान मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर भेजें। अल्लाह हाफिज़।